Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 30th June 2020. So let us see which are the important articles that have appeared in today's The Hindu newspaper. So we have segregated them in let's say in two parts, for mains and for prelims examination. So let us see one by one for mains examination, and then later we will move on to prelims examination. So again, the editorial page, first article, page number 6. A grain, a plenty and the crisis of hunger. So basically the article talks about the food security in India at present, when the challenging time of COVID-19 and the subsequent lockdown is going on, and many migrant workers are, let's say, facing problems in accessing food. So the article focuses on the main, or the essence of the article is saying that the immediate the policy of government should be to disburse these food grains to those migrant workers and those which are, let's say, marginalized people at the subsidized rate through PDS, rather than let's say focusing on one nation one ration card scheme. At present the government is emphasizing on this scheme. However, the article says that the immediate issue, that is food security or the hunger of these migrant workers, should be satisfied, or let's say addressed. Okay. So these are some key points in the article, that yes, the article mentions that yes, central government and the FCI go downs are, let's say, above its what you can say limits, and therefore we have sufficient amount of food grains. However, these food grains should be, let's say, moved throughout the country at the PDS shops, or the ration shops, wherein the food grains should be given to those people who are facing the problems during this lockdown period at subsidized rate. Okay. So for that purpose, the government has announced that PM Garib Kalyan package, and in that package there was PM Garib Kalyan Anna Yojana, and through that scheme the government decided to provide 5 kg of let's say food grains and 1 kg of pulses free of cost for 3 months. However, now these 3 months are going to end now today only, by June end, and many states are demanding to the central government that this scheme should be continued for let's say further some more time, some months. Okay. So yes, government is yet to take decision on that part. However, the article also talks about one nation one ration card scheme and some concerns for this scheme or implementation of scheme. What are the concerns here? The concerns are, let's say, authentication failures, and let's say the authentication, we can say that the finger marks sometimes are not correct, and therefore the failure of such authentication or failure of networks may lead to exclusion of those members, and therefore these people may not receive the subsidized food grains. Okay. So this is important concern, and that's why the immediate concern or the concern of the government should be providing free of cost food grains. Okay. Because a large chunk of the, let's say, marginalized section or these migrant workers which are facing problems in this lockdown period, they should be provided with immediate access to food. Fine. So article talks about this thing. You should take some inputs regarding these arguments. This is important for your GS3 purpose. Okay. So in GS3 the article related to, we can say, food security. Okay. So food grain movement and food security, this is topic in your syllabus, and therefore the question can be asked in this manner. You can see, discuss the short term and long term measures to ensure food security in India in the challenging times of COVID-19 spread. So such kind of question can appear in your mains examination GS3 paper. Fine. So moving on to next article. Yes, again editorial, cautious but firm. Now the article is again talking about India-China border standoff at present that is going on, specifically in Galwan region, Ladakh. Okay. So recent statement on 26 June, the strong statement from India, Ministry of External Affairs, what it reflects. The article talks about this in first part of the article, and later on what should be the cautious approach that should be taken by the government while dealing with China. Okay. तो स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है ये बताया गया है. द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सजेस्ट दैट, और द स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द recent standoff and the conflict is part of larger context and not the border clashes
or we can say not the small skirmishes along the border, which is the regular part. Okay, but this is the larger context that government is let's say India is considering this as. At the same time, statement makes clear that the responsibility to restore peace and tranquility along LAC without citing further any dialogue. Okay, so it is China's responsibility that India is saying, and India is saying that we will not involve in further dialogue, or a dialogue in terms of heads of the nation, not diplomacy level. Okay, so diplomatic channels will be open for communication. However, the dialogue among the two heads of the country, or let's say finance minister, that will not be conducted. Let's say अभी हम बोल सकते हैं कि कमांडर कॉर्प्स लेवल पे टॉक्स चल रहे हैं, और फिर अभी एक मीटिंग होने वाला है, तो पहले एक डी एस्केलेशन होगा टेंशंस का बॉर्डर पे, फिर हेड्स ऑफ द स्टेट बात करेंगे. फाइन. तो आर्टिकल ये बोलता है, एंड इन द एंड वी शुड टेक सम बैलेंस स्टैंड, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है दैट वॉट एवर द गवर्नमेंट टेक स्टेप्स इट विल हैव सम सीरियस कंसिक्वेंसेस. ठीक है, कोई भी स्टेप ले लो गवर्नमेंट का अभी जो होगा उस पे कुछ ना कुछ सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे, एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर वाइड कंसल्टेशंस एंड साइमल्टेनियसली प्रिपेयर द पीपल फॉर व्हाट मे फॉलो. Okay, so preparing people is also important. The government should not keep people in the dark or secret whatever that is going on. It should communicate. Okay, and wide consultations in terms of, let's say, opposition party or experts or domain expert in terms of international relations and internal security we can talk about. तो उनके साथ consultations होने चाहिए, तभी decision होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे आप वर्डिंग्स यूज कर सकते हो जब आप कंक्लूजन लिखते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू हैव फॉलो अप ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस एवरी डे. आर्टिकल्स आर अपेयरिंग, न्यू एस्पेक्ट्स वी विल ट्राई टू कवर एवरी डे. नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन द एडिटोरियल ऑन पेज नंबर 6, legitimate concern. Now the article is talking about the Naga peace accord. Recently what happened, the governor of Nagaland has written a letter to CM of Nagaland concern that he is concerned about the law and order situation in Nagaland. Okay, so extortion of money and for the movement of goods and services, तो उसके लिए एक लेटर लिखा गया था. and the governor is also a interlocutor of central government. so what is interlocutor? इंटरलोक्यूटर क्या होता है, जैसे कि कोई भी इंसर्जेंसी एरिया है तो वहाँ पे इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन द डिस्कशन टेबल. ओके, सो ही इज कॉल्ड इंटरलोक्यूटर. तो ये पीस बिल्डिंग प्रोसेस जो है इंसर्जेंसी एरिया में, स्पेसिफिकली हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो रीजन है वहाँ पे, नागालैंड जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी है. और इसका एक बैकग्राउंड है बहुत सारा, कि जैसे वहाँ पे बहुत सारे ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, दे वांट टू लेट्स से वांट टू हैव सेपरेट कंट्री देयर, ग्रेटर नागालैंड. यहाँ पे आपको एक रेफरेंस भी मिलेगा कि ये देखिए यहाँ पे, इट्स कोर आइडियोलॉजी ग्रेटर नागालैंड. तो ऐसा उनको सेपरेट कंट्री चाहिए जिसका वो सेपरेट फ्लैग चाहते हैं, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं. ओके, सो दैट्स वाई ये एक एक्सट्रीमिस्ट हम बोल सकते हैं. हाउएवर दे आर आर्म्ड ग्रुप्स. ओके, दो वी हैव लेट्स से ब्रॉट देम टू द पीस प्रोसेस, एंड वी हैव लेट्स से आर्म व्हाट यू कैन से let us see about this what you can say key points of the article. We have maintained the ceasefire between these groups, and yes, we are in process to have the peace accord with them. However, the final peace accord is not signed yet. So article is saying that we should focus on that. And what are the let's say limitations or this challenges for this peace accord? ये peace accord sign करने के लिए क्या challenges है, जैसे कि ये जो क्या बोलते हैं हम NSCN जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, it is not bringing all the stakeholders on, not allowing the other let's say groups of those extremist groups in that region on the same peace process. That's why the problem is going on. At the same time, the extremist philosophy of the group is not accepted by the government. Okay, so these are some challenges that you should know about it. So what kind of question that has appeared earlier in 2017, you can see that northeastern region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons
for the survival of armed insurgency in this region. तो क्या रीजंस है, ये वहाँ पे ही इंसर्जेंसी क्यों है, ठीक है. तो there are many reasons. First thing is that the region, northeastern region, is isolated region. Okay, there is no infrastructure building or connectivity with mainland India. Okay, so that's why the region, or the, let's say, people of that region, they are completely isolated or separated from the mainland region. At the same time, the topography, it is densely forested, and we can say that the mountainous topography, and that's why it is difficult for let's say building all these rail and road routes to this region. That's why the insurgency remains in that region. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मुश्किल जाता है ये एलिमिनेट करने के लिए. सो गुरिल्ला टैक्टिक्स आर यूज्ड बाय दिस ग्रुप्स. तो ये निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है एलिमिनेट करने के लिए. एट द सेम टाइम देर आर ऑल्सो वी कैन से दैट आर्ग्यूमेंट्स दैट दीज ग्रुप्स आर, लेट्स से, सप्लाइड आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड फिनांस्ड बाय फॉरेन कंट्रीज. ओके, सो नेबरिंग कंट्रीज, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग आर्म्स एंड एम्युनिशंस. तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो उस रीजन में इंसर्जेंसी रहने के लिए. फाइन. Okay, so you can add up to that, we can say that article internal security आपको जो टॉपिक है GS 3 में, तो उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो फॉलो अप रखना है. ओके, नागा पीस अकॉर्ड. नेक्स्ट आर्टिकल. नाउ दिस इज article on page number 6, again editorial. Now the article, context of the article is that Israel is let's say executing a plan, annexation plan for West Bank, or some region, 30% of West Bank, tomorrow, okay, 1st July. And yes, the article is talking about it, how it let's say breaks the international conventions, break the international law. ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्या होता है कोई भी एक एनेक्सेशन, मतलब, ठीक है. तो अंडर इंटरनेशनल लॉ, एनेक्सेशन इज फोर्सिबल एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय वन स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, एंड दिस इज नॉट अलाउड इन एनी इंटरनेशनल कन्वेंशन, और इट इज अगेंस्ट एनी इंटरनेशनल लीगल बॉडी और इट्स चार्टर, and even the United Nations Human Rights Committee, you can see here, Office of High Commissioner for Human Rights, okay, UN Human Rights का जो बॉडी है, उन्होंने बोला है कि दिस इज वायलेशन ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड जिनेवा कन्वेंशंस. ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है. फाइन. सो यस, यू कैन, व्हेनेवर द, इफ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट मेंटेनिंग द लेट्स से रिस्पेक्टिंग द इंटरनेशनल लॉ, नेशन स्टेट्स कंसेप्ट जो बोलते हैं हम, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ गाइड्स द कंट्रीज, and if some country is breaking that law, what is the responsibility of these international organizations and other countries. ठीक है, तो ये आपको इस आर्टिकल से इनपुट्स लेने हैं. फाइन. एट द सेम टाइम फॉर इंडिया, बोथ कंट्रीज आर important, or regions, we can say that Israel, yes, recently very good relations, even the strategic relations we have with Israel, and mostly the defense related cooperation is done with Israel. At the same time, some agricultural technology is also imported, or we can say developed collaboration in that technology with Israel. At the same time, there is some emotional connect with Palestine region since independence, okay, and that's why many United Nations resolutions in favor of Palestine, those resolutions India has favored Palestine. Okay, so now the question remains that with which country India will align, what stand will India have, or whether it will have neutral stand. तो अभी हम अगले हफ्ते में देखेंगे, इस हफ्ते में, कि कैसे आर्टिकल्स आते हैं, क्या इंडिया का रिस्पांस होता है, क्या यूनाइटेड नेशंस का रिस्पांस होता है. ये आर्टिकल्स अभी आएंगे, हम फॉलो अप लेंगे उसका. फाइन. सो यस, नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी गुड आर्टिकल रिलेटेड टू सोशल जस्टिस. ओके, now social justice, when we say social justice, it is part of your GS2 also, as well as GS1 society part. so GS1 में जब क्वेश्चन आता है तो आप सोशल एंगल से देखेंगे, और जब GS2 में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट, गवर्नेंस एस्पेक्ट और सोशल जस्टिस के एस्पेक्ट से देखें. ठीक है, तो क्या कह रहा है आर्टिकल? इट इज टॉकिंग अबाउट द एक्सेसिबिलिटी
to persons with disability. Now whatever the lockdown that is going on at present, it has, let's say, more impact on, let's say, these minority population in India. Okay, so here the person with disabilities are facing some problems. What are those problems or challenges? Challenges during pandemic, challenges of financial stability, access to essential items, adequate accommodation, health care. Okay, at the same time this caretakers and domestic help, जैसे कि समझो जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी है, समझो एक छोटा बच्चा है तो उनको जो अगर डिसेबिलिटी है तो उनको केयर करने के लिए स्पेशल हेल्प्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल उनको नर्सेस होंगे या मेडिकल केयर करने के लिए जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, अभी ये लॉकडाउन की वजह से कम हो गया है और वो एक चैलेंज है. एट द सेम टाइम सोशल आइसोलेशन, लिमिटेड एक्सेस टू एक्सेसिबल एडिक्वेट सैनिटेशन, ये सब चीज़ें अभी नहीं मिल रही है उनको, तो एक चैलेंज है. नाउ द आर्टिकल प्रोवाइड्स वे फॉरवर्ड फॉर पोस्ट कोविड वर्ल्ड, जहाँ पे हमने ये एक्सेसिबल चीज़ें करनी चाहिए फॉर दिस सेक्शन ऑफ पीपल. फाइन, तो क्या होगा वे फॉरवर्ड? प्रोमोट एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑन इंक्लूडिंग दीज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. ठीक है, तो आपको अवेयरनेस करना चाहिए लोगों में. इम्प्लीमेंटिंग एक्सेसिबिलिटी लॉज एंड रेगुलेशंस, एट द सेम टाइम इम्प्रूविंग फिजिकल एक्सेसिबिलिटी एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन. जैसे कि जो भी जो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक स्पेसेस है, जैसे कि कोई एक बस स्टैंड है या कोई हम बोल सकते हैं कि कोई एक बिल्डिंग है, तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ है, दिव्यांग पीपल के लिए. ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हमने डिज़ाइन में भी सोचना चाहिए. रिड्यूसिंग स्टिग्मा, यस, ये एक सोशल एस्पेक्ट, हम सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हम कंसिडर करना चाहिए वे फॉरवर्ड में. और ये कैसे होगा? एजुकेशन और अवेयरनेस से होगा. फाइन. एट द सेम टाइम डेवलपिंग टूल्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू एंगेज मीनिंगफुली विथ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. Okay, so there should be some programs and wherein these people can, common people can be engaged with these people, meaningful engagement. Okay, तो उनको थोड़ा फायदा होगा. At the same time, these people should be involved in policy making so that the policies are made what you can say effective. ठीक है, तो इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग कब होता है? जब जो जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं वो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में आने चाहिए, तभी वो पॉलिसी इफेक्टिव होती है. फाइन, सो दैट्स व्हाई वी शुड इंक्लूड दीज पीपल इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इटसेल्फ. फाइन, सो कंक्लूजन में हमें एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट इस आर्टिकल से मिला है, दैट एक्सेसिबिलिटी इज द वाइटल ह्यूमन राइट and an accessible post covid world is one that will deliver justice to minority population. ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस स्टेटमेंट से. आपको इसी स्टेटमेंट को एलैबोरेट करना है. ठीक है, कि कैसे ये वाइटल ह्यूमन राइट है एक्सेसिबिलिटी, और कैसे ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अगर एक्सेसिबिलिटी होगी तो कितना सही होगा. ठीक है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हमने बोला है कि इंक्लूसिवनेस. ठीक है, तो हाउ टू मेक लेट्स से इंक्लूसिव वर्ल्ड, वो एक सेक्शन ऑफ पीपल, पॉपुलेशन, सोसाइटी, हमने ये इसके बारे में सोचना चाहिए. फाइन. नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर फर्स्ट जॉइंट हाइडल प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का नाम है खोलोंग चू वेंचर. ठीक है, आखिर में जब चू आता है तो वो भूटान का होता है प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखिए. ठीक है, मैं अभी बताऊंगा इसके आगे कि ये कैसे काम आएगा. ठीक है, आखिर में चू आता है तो वो सारे प्रोजेक्ट भूटान में है. ठीक है, तो कोलोंग चू जो है ये प्रोजेक्ट है, ये 600 मेगावाट का. तो वो प्रोजेक्ट एक्चुअली हमने साइन किया था उसके ऊपर एग्रीमेंट 2014 में, और उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है. एंड बाय 2025 वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. ओके, सो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कहाँ पे हो रहा है? भूटान में. इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन भूटान्स लेस डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन ऑफ त्राशियांगसी. तो ये वर्ड रिमेंबर करना मुश्किल है, ज़रूरी भी नहीं है आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, ऐसे नहीं पूछेंगे कि कौन से रीजन में है, आपको प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए. एट द सेम टाइम लुक एट दिस स्टेटमेंट. ऐसा स्टेटमेंट आपने मेंस में लिखना चाहिए, आईआर में. भूटान का बायलैटरल रिलेशंस का क्या है? हाइड्रो पावर सेक्टर हैज़ बीन द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन आवर टू कंट्रीज.
कैसे म्यूचुअली बेनिफिशियल है? नाउ वी नो दैट अभी जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज आर not having infrastructural development, or even we can say that the hydro or the electricity production और electricity supply, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो क्यों ना हायर रीचेस में हिमालय में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बिल्डअप किए जाए भूटान में, और हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शेयर करें। ठीक है, तो वी नो दैट भूटान तो ऑब्वियसली बहुत ही कंटेंट कंट्री है, हैप्पी है, हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट रहता है, राइट। सो यस, उनको थोड़ा सा ही लगेगा, ठीक है, बाकी वो हमें देंगे इस एग्रीमेंट में। ठीक है, सो यस, we will help them to build these projects, we will provide technology, we will provide finance, and then we will share the electricity, and that's why it is saying that mutually beneficial bilateral cooperation, fine। and at the same time हमें पता है कि भूटान जो है वो बाकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट पे बिलीव नहीं करता है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस रखता है, तो वो अच्छा है। हम भी उनको जब फाइनेंस करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा उस चीज़ का, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बायलैटरल रिलेशन में ऐसे स्टेटमेंट लिखना है भूटान के साथ में, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमने पहले भी इनके साथ भूटान के साथ हमने कोऑपरेशन किया हुआ है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है, देख सकते हैं कि हमने पहले 4 ऐसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। यस, अप टिल नाउ 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन बिल्ट इन लास्ट 30 ईयर्स, और 2 अभी कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, भूटान के साथ में। तो इंडिया हैज़ yes, why it is unique, because it is the first time that we are let's say having this project as 50-50 joint venture। पहले क्या होता था कि इंडिया पूरा ही फिनांस कर देता था, ठीक है, तो ठीक है, हम पहले ऐसा सोचते थे, जैसे कि गुजराल डॉक्ट्राइन में हमने बोला था कि हमारे नेबर्स को सारे हेल्प कर दो, ठीक है, और इन रिटर्न कुछ मत लो, गुजराल डॉक्ट्राइन यही बोलता है, राइट। सो अभी हमारे पास इतना नहीं है जो हम इनको फ्री में देंगे, सो दैट्स वाई द 50-50 वेंचर, एंड दैट्स वाई ये यूनिक है, ठीक है, ये आप चीज़ें पता होनी चाहिए, फाइन। सो नेक्स्ट आर्टिकल अभी देख सकते हैं आप, ऐसे प्रीलिम्स में MCQ आ सकता है इजीली। मैंने अभी जो ट्रिक बताई तो आपको एलिमिनेट करने आएगा। क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, कौन से हैं? कोलोंगचू जो अभी हमने बात की, मांगदेचू प्रोजेक्ट जो है वो पिछले साल न्यूज़ में था, वो भी भूटान में है, इंडिया ही कोऑपरेट कर रहा है उसके लिए। कुरीचू जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, वो भी इंडिया ने फिनांस किया था पूरा का पूरा। अब पंचेश्वर प्रोजेक्ट, अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है बहुत मतलब दिन से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा, दिस प्रोजेक्ट इज़ इन नेपाल, एंड अगेन इंडिया इज़ हेल्पिंग नेपाल टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। तो बाकी सब देखो प्रोजेक्ट में क्या है, तो वो क्या होगा, सारे के सारे भूटान में होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रिक आप अगर याद रखोगे तो उसका ज़्यादा यूज़फुल होगा, फाइन। नेक्स्ट आर्टिकल, अभी प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक आर्टिकल देखते हैं। रिसेंटली तमिलनाडु में एक कस्टडियल डेथ हुआ था, एंड दिस वाज अगेन we can say that the excesses of police institution or let's say human rights violation, उसके related एक article है ये। and what is important for our purpose, यहाँ पे आपको पुलिस रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है GS2 में स्पेसिफिकली, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ है, आर्टिकल मेंशंस दैट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है, ये एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस की, और ये अडॉप्ट की थी 1984 में, और ये एक्चुअल में फोर्स में आई थी 1987 में। ऐसे फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ ये 26 जून को जो इम्प्लीमेंट हुई थी, इसलिए ये 26 जून रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही 26 जून था, तो इसलिए वो न्यूज़ में भी था, और इस रीज़न से भी, कस्टडियल डेथ से वो आर्टिकल लिखा गया। एट प्रेजेंट 170 पार्टीज़ है। आपको इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया हैज़ साइंड द कन्वेंशन इन 1997, हाउएवर इंडिया हैज़ नॉट रैटिफाइड इट। नॉट रैटिफाइड, रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है? रैटिफिकेशन मतलब ये होता है कि जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री की, वो लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो कन्वेंशन को पास करना चाहिए। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में उसको पास करना चाहिए, तभी उसको रैटिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। सो इंडिया हैज़ साइंड,
हाउएवर नॉट रेटिफाइड येट। तो आर्टिकल बोल रहा है कि वो रेटिफिकेशन होना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है यहाँ पे? कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, कैट इज द बॉडी विच मॉनिटर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन। अब ये पता होना चाहिए कि रेटिफिकेशन होने के बाद 1 साल में रिपोर्ट देना पड़ता है कंट्री को। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 4 ईयर टर्म्स, जो कमिटी में है। ये थोड़ा डिटेल में है, ये ज़रूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। कमिटी व्हाट यू कैन से अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर केम इनटू फोर्स, या फिर इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड ऐसे लिख सकता है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम लॉन्च्ड। ये पोर्टल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि ये कौन सी स्कीम के अंडर आ रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। तो उसका फुल फॉर्म है पीएम स्वनिधि, ठीक है। स्वनिधि में क्या है? तो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। नाउ दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 June 2020 एंड देन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम the new portal is launched, okay, and through this portal the loan applications and collection of documents and then Aadhaar connection, all these things will be done on that portal, and then there will be streamlining of this implementation of this scheme, okay. So that's why it was in news. आपको ये स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। Now this is important. DCGI, Drug Controller General of India, has permitted human clinical trials of Covaxin. This is India's first vaccine candidate. मैंने पहले भी लेक्चर्स में कहा है कि those drugs which are in news or let's say approved by DCGI, तो वो आपको पता होने चाहिए, आपने नोट रखना चाहिए उसका, ठीक है। अब ये फर्स्ट वैक्सीन है जिसका ह्यूमन ट्रायल अलाउ किया हुआ है, ओके। तो कोवैक्सीन देखते हैं, अगर मतलब टचवुड अच्छा होना चाहिए, हो जाना चाहिए वैक्सीन इंडिया में ही, ठीक है। तो कोवैक्सीन देखते हैं क्या होता है। इट वाज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV, फाइन। तो ये किसने डेवलप किया हुआ है? भारत बायोटेक। ये हैदराबाद में बेस्ड कंपनी है और ये इंपॉर्टेंट कंपनी है वैक्सीन प्रोडक्शन में, ठीक है। ठीक है, ये अनलॉक 2 रूल्स अनवील्ड, एक फॉलोअप होना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे अनलॉक प्रोसेस चल रहा है, लॉकडाउन कैसे था, कौन सा था। आपके एग्ज़ाम में कोई पूछने वाला नहीं है, बट एक आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस की सारी न्यूज़ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो एक फॉलोअप आप रख सकते हैं कि क्या क्या अलाउ किया है, क्या नहीं अलाउ किया है। एट द सेम टाइम, ठीक है, ये हॉटली डिबेटेड अभी टॉपिक चल रहा है, कल रात को ही बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, कि टिकटॉक और जो 59 ऐप्स जो बैन किए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो भले ही गवर्नमेंट ने रीज़न क्या दिया है कि यस नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, बट वी कैन ऐड अप दिस आर्गुमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। वाई? बिकॉज मोस्टली दोज ऐप्स आर चाइना ओरिजिन, ठीक है। तो वो एक हो सकता है कि स्पियोनेज या नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी रीजंस जो है, ठीक है। तो वो चाइनीज़ ऐप्स जो है वो डिलीट करने के लिए, अभी बैन करने के लिए इंडिया में बोला गया है। गूगल को भी और इनके सारे कंपनीज़ को भी ऑर्डर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखते हैं इसका फॉलोअप क्या डेवलपमेंट होता है। चाइना कौन सी चीज़ इंडिया को बैन करता है ये पता नहीं है अभी आगे चल के, ठीक है। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि ये इंडिया चाइना रिलेशंस का एक जो टेंशन्स चल रहा है, तो वो इकोनॉमिक लेवल पे या स्ट्रैटेजिक लेवल पे क्या चीज़ें पॉलिसी लेवल पे हो रही है, इसका एक आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फाइन। सो सम इम्पॉर्टेंट कैप्शंस एंड कोटेशंस। एक अच्छा कैप्शन था रूसो का, द स्ट्रॉन्गेस्ट इज नेवर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी ऑलवेज मास्टर अनलेस ही ट्रांसफॉर्म हिज पावर इनटू राइट एंड ओबीडियंस इनटू ड्यूटी। ऐसा आपको एसए का टॉपिक आ सकता है डायरेक्टली, ऐसा आपको एथिक्स में भी डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। वे एसेसिबिलिटी वाला हमने देखा है, सोशल जस्टिस में आप लिखिए, और ये इनजस्टिस एंड डिनायल ऑफ राइट्स हैज़ नो परमानेंस, ठीक है। ऐसे भी आपको एथिक्स में पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है, इनजस्टिस एंड डिनायल ऑफ राइट्स।
हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं कि जहाँ जहाँ इनजस्टिस हुआ है, जहाँ जहाँ डिनायल ऑफ व्हाट यू कैन से राइट्स हुआ है, वहाँ वहाँ क्या हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, सिविल अनरेस्ट हुआ है, वॉर भी हुआ है, ठीक है, और उसके बाद चेंज हुआ है, ठीक है. सो देर इज़ नो परमानेंस इन दिस. तो ये आपको एक चीज़ें पता होनी चाहिए आर्गूमेंट से रिलेटेड. फाइन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज द हिंदू न्यूज़पेपर. So for further information related to editorial discussion classes wherein in-depth analysis of these issues is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.